Hello guys. So in the last video we have understand the functional interface and what is functional interface that we have talked about. We have a one single uh, abstract method, and so that it is a functional interface. Either you will write this annotation functional interface or not, right? It doesn't matters, but the definition saying that interface that contains only one abstract method, and there can be a default methods, right? Multiple default methods you can put, and while we are using this, right, p.print we have, right? So if you want to call that, so we can call like this. We can use lambda expression to call your function, right? You can define your implementation with the help of lambda expression. Okay, so now what we will do, we'll understand let me remove these things. Let me remove first this is not in use now, and let me keep stay with the object, and I will remove this one. Okay, so I'll keep it very simple. This is class, and I have created one just object. If it is required, I will use, otherwise I'll remove it. Okay, this is very simple method. Okay, now understand what are the things came in the Java. So as we have already talked about, Java 8 has introduced a lot of new features such as lambda expression, streams, method reference, etc. मतलब हमने जावा 8 में जो भी फीचर्स देखे थे, उसमें से जो नए फीचर्स हैं वो लैम्डा एक्सप्रेशन है, स्ट्रीम्स थे, एंड give me 1 second, this is alarm, yes, yeah. So जावा 8 में जो नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे उनमें से कौन से थे? लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम्स एंड मेथड रेफरेंस, राइट? लाइक first talking about lambda expression, then we have talked about stream. I'll talk much about the stream later, and the method reference like this. Okay, and you can write method reference in capital, stream also in capital, and lambda expression also in capital. Okay, expression, let me write expression. Okay, so Java 8 features such as lambda expression, streams, method reference, and you can write etc, right? Etc means there is more uh, Java 8 new features are there. Now we will talk about the method reference. So what is method reference? And and you can also say method reference where we will use, or you can say what is a method reference in Java 8. Okay, so the method reference is used for the functional programming, functional interface, right? And it is simply a more compact way of writing lambda expression, right? And you can replace lambda expression with a method reference, or the previous function that you have already written, that you can also write, right? Means what is the syntax actually? So if we'll talk about the method reference, right? So I'll write here. Okay, method reference syntax, we'll talk about syntax. So how we'll write the syntax? So there should be a class, right? And class will call its method name, right? Previously when we are talking about the syntax, we are using like this, right? Expression, but we will write now like this. So this is the way, this is the syntax that we will use your method reference syntax, because it is a more compact way of writing the lambda expression, right? And this is nothing but a new feature that we have in Java 8, right? And we will see a lot of things, like how many types of method reference is there, like how the reference works in the static, instance variable, instance method,
like that we will understand is there a constructor, is there not, right? So a lot of things we will do in this method, in this uh, expressions, right? So first of all, let me write something. Give me 1 second. Okay, so I'll write here. Okay, let me zoom little bit. Okay, so understand what is method reference, right? So method reference are a special type of lambda expression, you can say, and that execute only one method, right? So how we'll write the syntax, right? So if there is an object of any class, right, we can use this method like this. We can write previously for the lambda expression method name, we will write here method name, right? Previously what we will use to do, in place of this we used to write lambda expression, like a arrow, right? Arrow function, you can say, or arrow. So now we will replace with this. Okay, let me remove this. Okay, so method reference are special types of lambda expression. Okay, and that will use in place of lambda expression. It is little compact way of writing this, and we are not going to implement here. We will already implement the method names, method implementation, and then directly we will call here as a object, as a with the object. Okay, so you might have already guessed that you need to understand lambda expression first. If you are comfortable with the lambda expression, then you will move it to here, right? So in the practical session I used to provide multiple you can say task as well as examples, so that you will get lambda expression clear understanding, and then we used to come to the, you can say, lambda expression. So lambda expression क्या है? बहुत इजी चीज़ है. हम इसे हम इसे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के अल्टरनेट एज ए अल्टरनेट यूज़ करते हैं. बट यूज़ करने से पहले आपको लैम्ब्डा एक्सप्रेशन समझना होगा, और बहुत इजी है ये करने के लिए. इसीलिए मैं अपने प्रैक्टिकल क्लासेस जब मैं लेता हूँ ऑन वन वन टू क्लासेस में, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एग्जांपल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं, जिसके बेस पे आपको थोड़ा इजी हो जाता है और आपको समझना थोड़ा इजी हो जाता है. अगर आपको भी क्लास वर्स लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, चलते हैं आगे क्लास की ओर. कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड with the help of some example, right? So I have this notepad, and we'll discuss one by one here. Okay, so what we will do, we'll write a class. Let's suppose what we should do, let me create a class here. Okay, or let it be this class only. Okay, then we have the method, so I'll use this letter. I will use this letter. For now, let's think there is a list of country. Okay, so if you want to write a list of country, how will write? I'll take a list of a string, and I will write country, countries. Okay, countries list I will take, and if we write the all the strings with the help of all the strings, you can write arrays dot add list. There is multiple methods in which we will use this method, and here not null we will provide, but we will provide the new string array, and you can initialize the array with the help of some string value. Let's suppose I'll provide India, then I will provide Sri Lanka, and then I'll provide let's suppose China. अपने पड़ोसी देशों का नाम नहीं भूलना चाहिए. Then Nepal, and then let's suppose level 2 Russia. Like this we'll use. Okay guys,
So I did some mistake here, and then Russia should go in double quote, not the single quote. Leave it for now. We'll not use multiple things at a time, but we'll use, let me import this. I have import now. So as you can see, we have taken import arrays and list, because I have used list here, and here we use array, right? Apart from that, we have created the string countries list of strings, and for that we will use arrays dot as list. जब भी हम arrays dot as list लिखते हैं तो इसमें हमें string array हमें प्रोवाइड करना होता है। तो string array हम ऐसे बनाते हैं और इसमें डालते हैं, राइट। फिर ये क्या करता है, हमें कन्वर्ट करके लिस्ट में प्रोवाइड कर देता है एज ए स्ट्रिंग, जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए था, राइट। ऐसे करके करने से जावा का जो यूटिल यूटिल क्लास का जो लिस्ट है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। जब एक बार कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि कैसे राइट करें। ओके, लेट्स अहेड। सो अगर हमारे पास लिस्ट है, राइट, और अगर हमें क्या कहते हैं, अगर हमें यूज़ करना हो, सपोज हमें प्रिंट करना हो और हमें देखना हो वैल्यूज़ में क्या है, राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना होता था। अगर प्रिंट करना हो तो कैसे करते थे, जावा 8 से पहले हमें हम एज्यूम करते थे कि ये एक एनोनिमस क्लास है। लेट्स सपोज कि अगर मैं कंट्रीज लिस्ट लेता हूँ तो कंट्रीज लिस्ट को हाउ विल यूज़ दैट, वी विल यूज़ countries dot will convert into the stream, so we'll use countries dot stream. When we will do countries list dot stream, so now the data is not the list object, but now it is a stream object. So over the stream object you can call all the stream methods. So when you will do dot, you will find all the streams method. So आपको ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट, ये सब क्या है, स्ट्रीम्स मेथड है। ये लिस्ट मेथड्स नहीं है, ये स्ट्रीम मेथड्स है। और वो कैसे मिला, क्योंकि हमने कंट्रीज डॉट स्ट्रीम किया, राइट। और आपके सामने ये सारे मेथड्स खुल के आ जाएंगे, राइट। जब मैं 1-to-1 क्लास लेता हूँ तो इसमें सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं और आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं, जिससे आपको एक क्लियर हो जाता है। ओके, तो अगर चाहिए क्लास तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। तो कंट्रीज लिस्ट डॉट स्ट्रीम जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर ईच मेथड लगेगा, फॉर ईच। जब भी हम फॉर ईच मेथड यूज़ करते हैं तो ये कहाँ पे यूज होता है, जब भी हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है, ऑल द एलिमेंट और ईच एलिमेंट यू कैन से ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम इस टर्मिनल ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे। टर्मिनल ऑपरेशंस क्या होता है, इंटीरियर ऑपरेशन क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट अभी ये समझो कि कंट्रीज लिस्ट डॉट स्ट्रीम जब हम करेंगे तो हम फॉर ईच हम यूज़ करेंगे। जब भी हम फॉर ईच यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें कंज्यूमर का एक्शन प्रोवाइड करना होता है। अगर आपको कंज्यूमर बनाने आता है, इजली यू कैन क्रिएट एंड यू कैन पुट हियर। अदरवाइज जावा 8 से पहले हम लोग कैसे कर सकते हैं, सेम चीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, राइट, एज ए एनोनिमस क्लास समझ के, राइट। अदरवाइज very simple thing what you can do, you can write new consumer like this and provide this is nothing but your string type, right। हम कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। फिर हम क्या करेंगे, कंज्यूमर के पास ओनली वन मेथड्स होता है, राइट, दैट इज एक्सेप्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, उस अगर आपने बना के रखा है ऑलरेडी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करना है कि यहाँ पे उसको ओवरराइट कर देना है, राइट। तो कैसे करेंगे तो वो समझो। जब ऐसे लिख दिया, राइट, आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, राइट, लेट सपोज जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आप इंपोर्ट करोगे और कर्सर लेके जाओ तो ये क्या कह रहा है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। आप जो इसका मेथड है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो जैसे क्लिक करोगे आपको ये आ जाएगा कि आप इस मेथड को ओवरराइड तो किया ही नहीं है। मीन्स यहाँ पे आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। कैसे ओवरराइड करना पड़ेगा, मैं सिंपल एक लाइन लिख दूँगा, सिस आउट, ये लो है। और मैं कुछ नहीं, हम यहाँ जो भी कंट्री हम पास कर रहे हैं, ये टी क्या है, टी इज़ नथिंग बट योर कंट्री। तो हम ऐसे लिखेंगे कंट्री, कंट्री लिख दिया और यहाँ पे कंट्री को पास कर दिया ऐसे।
कंट्री, कंट्री। अब ये जो भी आप यहाँ पे पास करोगे, राइट, कंज्यूमर के पास ओनली वन ऑब्जेक्ट, ओनली वन मेथड्स होता है, एक्सेप्ट, एंड दैट इज बाय जब आप इसको अनइम्प्लीमेंट किए, ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड, राइट, जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस को, इंटरफेस, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के इंटरफेस को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, मीन्स उसको ओवरराइड करना कहते हैं, राइट। मतलब किसी भी इंटरफेस क्लास के, किसी भी इंटरफेस के अंदर में कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जब तक उसका बॉडी प्रोवाइड नहीं करोगे वो हम उसको कॉल नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए हमने क्या किया है कि कंज्यूमर एक कंज्यूमर एक क्या है, इंटरफेस है, और इसके पास ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। इसलिए कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, फंक्शनल इंटरफेस। एज यू कैन सी हियर, अब इस पे लेके जाओगे तो इसमें कहीं पे लिखा है, देखो, दिस इज अ फंक्शन इंटरफेस हुज फंक्शन इज एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट, राइट, एज यू कैन सी, राइट। तो कंज्यूमर क्या है, एक फंक्शन इंटरफेस है, इसके पास ओनली वन सैम है, सैम का नाम क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इज ए फंक्शनल मेथड बोल सकते हो, राइट। और उसके अंदर में जो हम प्रोवाइड करेंगे ये इनपुट ऑब्जेक्ट है जो हमें प्रोवाइड करना है। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करेंगे, जो भी इस अंदर बॉडी के अंदर में आप राइट करोगे आप इम्प्लीमेंट कर दोगे उसको, राइट। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको लिस्ट में दे रखा है उसको फॉर ईच में कन्वर्ट करना है, स्ट्रीम डॉट फॉर ईच। फॉर ईच पे वन बाई वन एलिमेंट लेकर के हमें क्या करना है, फॉर ईच पे हमेशा एक कंज्यूमर ही जाएगा, राइट, कंज्यूमर ऑब्जेक्ट। तो कंज्यूमर ऑब्जेक्ट ऐसे बना लिया और उसके अंदर में एक्सेप्ट कॉल कर दिया, एक्सेप्ट कॉल करने के बाद आप उसका इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। मीन्स ओवरराइड करना पड़ेगा फिर उसको कॉल कर सकते हैं। मीन्स वी विल डू लाइक दिस ओनली, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। आई डोंट थिंक देर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द कोड। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ईजी है, अदरवाइज आपको भाई क्लास लेना पड़ेगा, तब फिर आप समझोगे। नहीं तो बहुत सारे कोर्सेज भी ऑनलाइन हैं, आप बाई कर सकते हैं वहाँ से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वन बाई वन, राइट। तो जब भी हम फंक्शन इंटरफेस के बारे में बात करते हैं तो आपको दिमाग में ये समझ में आना चाहिए कि फंक्शन इंटरफेस यूज़ कैसे करते हैं, फंक्शन इंटरफेस होता है क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करते हैं। जब लैम्डा एक्सप्रेशन समझ में आ जाता है देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मेथड रेफरेंस, हाउ वी विल यूज़ दैट। तो अभी तो क्लियर होगा। अभी तो हमने क्या किया, सिंपल एक कंट्री का लिस्ट बनाया है, कंट्रीज की लिस्ट पे हमने क्या किया, फॉर ईच लगाया, फॉर ईच लगाने के बाद हमने इसे ओवरराइड कर लिया है एक्सेप्ट मेथड को, उसके सैम को, सिंगल ऑब्जेक्ट मेथड दैट इज एक्सेप्ट, राइट, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका, जब हमें एनोनिमस क्लास को यूज़ करना है। एनोनिमस क्लास क्या होता है, जिस क्लास का कोई नेम नहीं होता है, ओके। आप उसको डिटेल पढ़ सकते हैं, गूगल कर लेना। तो क्या होता है एनोनिमस क्लास, क्या होता है, एनोनिमस क्लास के पास कोई नेम नहीं होता, हम डायरेक्टली उसको कॉल करते हैं और वहाँ से काम कर लेते हैं। जैसे कंट्रीज डॉट स्ट्रीम किया और यहाँ पे फॉर ईच लगा के वन बाई वन सारे ऑब्जेक्ट पे हमने काम कर दिया, ठीक है। नाउ थिंक, जब हमें यूजिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, यूजिंग एनो एनोनिमस 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 ऐसे लिख देते थे, चेक कर लेना स्पेलिंग, ठीक है। एनोनिमस क्लास, जब एनोनिमस क्लास यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, हम ऐसे यूज़ करते थे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशन हम यूज़ करते कैसे करते थे। सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे मेथड रेफरेंस पे चलेंगे। फिर हम देखते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन जब हम यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं। लेट्स सपोज मे बी इट इज़ ईजी फॉर यू बट अंडरस्टैंड, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते समय सोचो, जो भी कंट्रीज़ का लिस्ट था और स्ट्रीम था वो तो हमारे लिए रहेगा। मीन्स यहाँ से फॉर ईच तक ले लेते हैं, राइट, फॉर ईच तक तो होगा ही। इसके जस्ट नीचे इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। और लेट्स सपोज इसको भी बंद ही कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ नल टाइप का चीज़ होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं एक लाइन एंट्री कर देता हूँ, कंट्री जो हमने पास किया है ऊपर से, लेट्स सपोज कंट्री आर वाई, ओके। तो कंट्री कंट्री
स्पेलिंग मिस्टेक है, COUNTRY, कंट्री, कंट्री, और हमने लैम्डा एक्सप्रेशन लगाया, और यहीं पे मैं क्या करूँगा, सिस आउट दे दूँगा, और यहाँ पे प्रोवाइड कर दो जो भी कंट्री का नाम है। यहाँ पे नेम कुछ भी हो सकता है, आप स्पेलिंग की मिस्टेक की टेंशन मत लेना, राइट। आप यहाँ पे एक्स प्रोवाइड करोगे, एक्स यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो अब समझो, हमने सिंपली जब फॉर ईच हमने यूज़ किया, और फॉर ईच हमने दोनों जगह यूज़ किया है, बट दोनों में एक चीज़ चेंज हो गया। यहाँ से यहाँ तक देखो एनोनिमस क्लास हमने यूज़ किया है, तो इतना लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा है, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ किया और एक लाइन में ख़त्म हो गया, राइट। इस बेनिफिट क्या हुआ कि एनोनिमस क्लास के जगह पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, लैम्डा एक्सप्रेशन, सो दैट आपका कोड थोड़ा कम हो जाता है, राइट। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया। अगर हमें यूज़ करना पड़े किसके थ्रू, मेथड रेफरेंस के थ्रू, तो कैसे हम करेंगे, यूजिंग मेथड रेफरेंस, ओके गाइस। तो ऐसे ही हम यहाँ से यहाँ तक फॉर ईच यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फॉर ईच यूज़ करेंगे, और क्या लिखेंगे, जो भी आपके पास, लेट्स सपोज कैसे बात करते हैं, सिस आउट सिस्टम, और लिखो सिस्टम डॉट आउट, ये आपका स्ट्रीम हो गया। यहाँ पे दो कॉलम जो मैंने बताया था, उसके बाद प्रिंट लगा दो, प्रिंट ln, राइट, दैट्स ऑल। ये लिटिल कम्पैक्ट हो जाता है आपको लैम्डा एक्सप्रेशन के अलावा। तो दिस इज द वे वी विल राइट लैम्डा एक्सप्रेशन, एंड देन वी विल राइट मेथड रेफरेंस, राइट। तो अगर आपको लैम्डा एक्सप्रेशन आता है तो आपको मेथड रेफरेंस इजीली समझ में आता है, ओके। ओनली इन प्लेस ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड वी विल कम्पैक्ट दिस वन। सबसे पहले एनोनिमस क्लास जो हम यूज़ करते थे उससे कम्पैक्ट क्या हो जाता है, लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन से कॉम्पैक्ट क्या होता है, मेथड रेफरेंस। So it will become little easy for you. So okay, I'll see you in the next lecture. Let's see what will come in the next lecture. Okay, see you guys.